Today, start our new chapter, Struggle for Freedom in India. Okay, what do you mean by freedom? Freedom means if in the past there was colonial rule. Colonial rule क्या होता है बेटा? That some other foreign country is rule over there. Okay, in India, the Britishers were ruling there. So countries are and ruling is some one other. So we want freedom from them. And you know, we can't get anything easily. For that, we have to do struggle. So this is our new chapter, chapter number 16, Struggle for Freedom in India. So let's start with in the past, India was well known for spices, textiles, jewelry, handicraft, etc. What does it mean? It's mean that we were very rich in our natural resources. And this, for this purpose, foreign countries our country interact foreign powers. Okay. So in the past, India was well known for spices, textile, jewelry, handicraft, etc. The Arabs, Romans, and Greeks had rich trade relations with India. We were trading with them. Trading means we were selling and purchasing, and we are doing trading relation with these countries. Okay. In the 16th century, traders from Portugal, Holland, France, and England came to India for the purpose of trade. 16th century, trader from which countries? Portugal, Holland, France, and England. Like in India, we come to the another state for the purpose of trading. Same was there. They came to India for trading, selling and purchasing. These countries fought among themselves to control the trade and make maximum profit. What happened? They fought themselves between which countries? Portugal, Holland, France, and England. And make maximum profit. The British, among the British defeated other and established the East Indian Company in AD 1600. They established a company by which they did trade in India, and the name of the country was East India Company. As well as they made company, the company bought the Indian goods at low price. What the company did? Bought the Indian goods at low prices, beta, and sold them at very high rate in euro. By this, they were making profit. Is it clear? What they did? Bought the Indian goods at low prices and sold them at very high rate in Europe. The company took away a large amount of wealth from India to England. The British traders exploited the farmers, traders, and weavers in India. What they did? They exploit किया उन्होंने हमारे farmers को, हमारे traders को. They sold the mill cloth from England at low rate than the handloom cloth. उन्होंने क्या किया वहां पे? They established a textile industry in Manchester. उन्होंने मैनचेस्टर में एक कपड़ा बनाने की कंपनी लगाई. सो अब जो हैंडलूम क्लॉथ था बेटा, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता था जो हमारे इंडिया में बनाते थे. वाई? क्योंकि उसमें लेबर ज्यादा लगती थी. सो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वहां पर जो मिल में उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया, तो ऑब्वियस है जब 100 लेबर का वर्क एक मशीन कर रही है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा बेटा कि उन्होंने
उसको रेट को वो क्या रखेंगे, कम रखेंगे। बाय दिस दे मेक प्रॉफिट। उससे क्या हुआ, हमारे जो इंडिया में जो हमारे हैंडलूम क्लॉथ का जो रेट है वो एकदम से ज्यादा हो गया, तो लोग जो कम रेट पे उनको मिल का जो क्लॉथ मिल रहा था उसको परचेज करने लगे। तो ऑब्वियस है जो हमारा खुद का इंडियन ट्रेड था वो इफेक्ट हो गया, हैंडलूम जो हमारा ट्रेड था। दे ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन द रनिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब उन्होंने हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारी जो रियासतें थी उस टाइम, उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली इन ट्रेड बट ऑल्सो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। Then the rulers of the kingdoms in India keep fighting among themselves. Then the rulers of kingdoms in India, उनको पता था कि जो हमारे यहाँ के rulers हैं, they are fighting among themselves. So they followed the policy of divide and rule, यानी कि फूट डालो राज करो. That policy they followed to weaken the Indian rulers. Slowly, the British traders turned themselves into rulers. किस पर्पज से आए थे बेटा वो यहाँ पर, ट्रेडर बनकर, और क्या बन गए, रूलर्स. Here we see how we became the colony of the England. We became the colony of the England. The Indians never protested joint against the officers of the East Indian Company. हमारे यहाँ पर बेटा क्या था कि lack of unity there was. अब जहां पर यूनिटी नहीं होगी then we have to pay. So उसमें हमने पे क्या करना पड़ा बेटा कि Indians never protested jointly against the officers of the East India Company. So revolt, if जब भी कोई बहुत एक मैसिव लेवल पर हम किसी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसमें हम वॉयलेंस के रूप में हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रिवॉल्ट. द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट वाज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस आल्सो. The Indians had always been protesting against the unfair practices of the British. जो भी वो हमारे साथ अनफेयर कर रहे थे उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना तो स्टार्ट किया. द इंडियन सोल्जर्स वर पेड. अब वो क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस, व्हाट वर द अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट वी वर फेसिंग. वो कौन सी प्रैक्टिसेस थी जो हम फेस कर रहे थे. लाइक द इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस सैलरी देन द ब्रिटिश सोल्जर्स. जो इस ब्रिटिश की जो आर्मी थी यहाँ पर इंडिया में उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे और ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे. बट यू कैन सी द डिस्क्रिमिनेशन in on the basis of salary we were facing. The Indian soldiers were paid less salary and the Britishers were high. The British introduced the Enfield rifles in which greased cartridges were to be used. First उन्होंने क्या किया बेटा, एक राइफल्स इंट्रोड्यूस की. इट वाज अ आर्म. ओके, ब्रिटिश आर्मी ने राइफल्स इंट्रोड्यूस की जिस पर कार्टेजेस ग्रीस होते थे. एंड a rumor spread that the cartridges were greased with the fat of cow and pig. कि उन कार्टेजेस पर जो ग्रीस है वो किसकी लगाई हुई है, जो काव और पिग है उसके फैट की, यानी कि उसके मांस की. और बेटा उसके लिए क्या था, उन राइफल्स को जो कार्टेजेस हैं मुंह से बाइट करके हटाना पड़ता था. और अब र्यूमर्स क्या थे कि उस पर किसका फैट लगा हुआ है, काउ एंड पिग का. तो इसने किसको इफेक्ट किया, हमारी फीलिंग्स को, रिलीजियस फीलिंग को. दिस एंड रेज्ड बोथ द हिंदू एंड रानी मुस्लिम सोल्जर्स as it was against their religious belief. जैसे मैंने आपको बताया
कि जो भी हिंदू सोल्जर्स थे या मुस्लिम सोल्जर्स थे उस आर्मी में, उन्होंने, क्योंकि ये उनकी धार्मिक भावनाओं के क्या था, खिलाफ था ये वाली चीज की, उस जो उनके मांस को बाइट करके कार्टेजेस के वो हटाना, ठीक है। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 began at Meerut near Delhi. So it is also an internal question where the revolt began first, and it was began Meerut near Delhi. And first revolutionary, you can say also, Mangal Pandey was the first Hindu soldier who refused to buy greased cartridges to be used in the Enfield rifles. There was a soldier in the British army. He was Hindu, Mangal Pandey. His name was Mangal Pandey, and he was the first soldier who refused. मैं नहीं करूंगा ये. क्या? To buy the greased cartridges to be used in the Enfield rifles. Right? Mangal Pandey was arrested and later on hanged. What the British Army did? British Army did. Mangal Pandey was arrested. उसको arrest कर लिया गया and later on hanged. और उसको फांसी पर लटका दिया गया. After this, the rebels spread in the many parts of the northern and central India. You see, the revolt spread, चारों तरफ फैल गया. कौन-कौन से पार्ट? And central India में. The Indian farmers, traders, workers, etc. supported and took part in the revolt. Took part in the revolt against the British. जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया और उसमें पार्ट भी लिया. क्या? कि वो किसके खिलाफ थे? ब्रिटिश के. ओके. Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor, was made the emperor of India. जो बहादुर शाह जफर थे उनको इंडिया का एम्परर बना दिया गया. The revolt was led by Nana Sahib and Tatya Tope. The revolt was led by सो देखो, कुछ भी होता है बेटा, उसके लिए हमें कोई ना कोई तो ऐसा लीडर चाहिए जो उस चीज को लेड करे. तो जो हमारा रिवोल्ट था, दैट वाज लेड बाय नाना साहिब एंड तात्या टोपे इन कानपुर. बेगम हजरत महल इन अवध एंड रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी. अलग अलग एरिया के अलग अलग लीडर्स थे. सो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने लेड किया और अवध में बेगम हजरत महल ने. ओके. The revolt of 1857 is considered the first war of Indian independence. इसको क्या कंसीडर किया जाता है? That was the first war of Indian independence. जो पूरा का पूरा ये रिवोल्ट हुआ है नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, इसको फर्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है. This revolt shook the foundations of East India Company's role in India. The British had the support of many Indian kings and nawabs. देखिए बेटा, कहीं पर भी कोई ऐसे ही रूल नहीं करता. उसको जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको इंडियन रूलर्स का या नवाब्स का क्या मिला था बेटा? सपोर्ट मिला था. ओके. They killed thousands of Indian and burnt many villages. Hundreds of Indians को मारा और कई तो गांवों को जला दिया गया. The British suppressed the revolt of 1857. Suppress मैंने क्या होता है बेटा? कि जिस किसी चीज को दबा देना. तो ये रिवोल्ट भी जो हमारा कौन से पार्ट में था बेटा? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हुआ था. दैट वाज स्प्रेड. द फेलियर वाज मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. देखिए, कोई भी चीज हम फेल हुए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अब इसके पीछे रीजंस क्या क्या थे कि हम ये जो रिवोल्ट है दैट वाज suppressed by Britishers. First, थोड़ी देर मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज के लिए हमारे लिए क्या होना जरूरी है? यूनिटी होना जरूरी है. और when the revolt was spread, it was limited only the northern and central part of the
India. It did not spread to all part of the country. अगर बेटा उसी टाइम ही ये रिवोल्ट ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड हो जाता और सब यूनिटी के साथ ये सब करते तो हम 1857 में ही भी गए पॉसिबिलिटी थी कि उसी टाइम हम जो है अपनी फ्रीडम को हासिल कर लेते, लेकिन that was not possible at the time because it did not spread to all part of the country. It was not supported by all sections of the society in India. इंडिया में जितनी भी सोसाइटीज थी तो सभी ने इसको सपोर्ट नहीं किया. The Indian soldiers did not have good weapons. जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास वेपन्स भी अच्छे नहीं थे. But the revolt of 1857 was a turning point in the history of the India. जो ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था, बेशक वो उस टाइम सप्रेस्ड कर दिया गया हो, दबा दिया गया हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक चिंगारी का काम इसने किया, तो इसको एक टर्निंग पॉइंट रहा ये हमारी हिस्ट्री में. The rule of the East India Company came to an end. जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एंड पर आ गया. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्वीन. जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो फिर किसने ले लिया? ब्रिटिश क्वीन ने. द इंडियन किंग्स एंड नवाब्स वर अलाउड टू रूल देयर स्टेट्स बट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. जितने भी इंडियन किंग्स थे, नवाब्स थे, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो जो अपने उनके प्रिंसली स्टेट्स थे उन पर अपना रूल कर सके, लेकिन कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का कंट्रोल है. लेकिन सबसे उससे पहले तो क्या हो रहा था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही रूल कर रही थी पूरे इंडिया के ऊपर. ओके. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ वाइसरॉय टू रूल ओवर इंडिया. उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने किसको अपॉइंट किया? एक वाइसरॉय को अपॉइंट किया. क्या करने के लिए बेटा? इंडिया को रूल करने के लिए. Is that clear? The condition of the Indians did not improve even under the British rulers. लेकिन जो हमारी conditions थी जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे उस टाइम भी वो जो conditions थी वो improve नहीं हो पाई. The new British officers were cruel. जो new थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूल थे, निर्दयी बोलते हैं जिसको बेटा. ठीक है. The revolt though crushed created the urge for freedom in the mind and heart of Indians. तो कहते हैं ना बेटा कि अगर हमें उस टाइम ब्रिटिशर्स इस तरह से जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो ना होते तो हो सकता है कि हम अपने फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं. लेकिन जो भी वो हमारे साथ क्रुएलिटी शो करते थे तो उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर क्या हुई? एक अर्ज हुई कि भाई नहीं, हमें क्या करना है? फ्रीडम करना. हमें क्या लेनी है? फ्रीडम लेनी है यहाँ से. ठीक है. The Indian society was in the grip of many evils such as sati, child marriage practice of the killing girl child and the caste system. उस टाइम क्या होता था कि हमारे यहाँ पर कुछ सामाजिक बुराइयां थी. कैसी? लाइक सच एज सती. सती मीन्स क्या होता था बेटा कि अगर किसी वाइफ का कोई हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो उसकी वाइफ को हस्बैंड के साथ ही उसी की मतलब कहते थे ना कि चिता के साथ उनको जला दिया जाता था. दैट वाज कॉल्ड अ सती. चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना. प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड को मार देना. एंड द कास्ट सिस्टम. तो ये हमारे जो सोसाइटी में एवल्स थी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा? हमारे इंडिया में एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया. Some Indians, such as Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Devendranath Tagore, Swami Dayanand, etc., worked against the evil in the society. इन्होंने जो भी ये उस टाइम के हमारे हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, सच एज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने मिलकर बेटा क्या किया कि जो हमारी एविल्स थी जो मैंने भी आपको बताई. व्हाट वर द एविल्स? सती, चाइल्ड मैरिज, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड एंड द कास्ट सिस्टम. इसके अगेंस्ट इन्होंने सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया. दे एनकरेज
ओके उन्होंने बेटा क्या काम शुरू किया, दे एनकरेज एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड रीमैरिज ऑफ द विडोज। एक तो उन्होंने विमेन की एजुकेशन को एनकरेज किया एंड रीमैरिज की, जो सती प्रथा में क्या होता था कि जिसका वाइफ हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसको जला देते थे, तो वो स्टॉप करके उन्होंने क्या किया, रीमैरिज ऑफ द विडोज। विडोज कौन होती हैं, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, सो उनकी रीमैरिज को उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, rise of nationalism in India. Nationalism, what is the mean of nationalism? We goes through a feeling that related to your country, you have deep feeling about your country, that is called the nationalism. Now the Indian realized that the British were treating them as slaves. What do you mean by slave? Slave means like जो हम दास कह देते हैं या गुलाम कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लेव्स। सो अब इंडियंस को रियलाइज होने लगा कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज स्लेव्स इन देयर ओन कंट्री। कंट्री किसका है, इंडियंस का कंट्री है, रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स रूल कर रही हैं, और वो हमारे इंडियंस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज स्लेव्स। दैट वाज नॉट राइट। दिस रियलाइजेशन, जब उनको ये रियलाइज होने लगा, यूनाइटेड द इंडियंस, उन्होंने क्या किया बेटा, अपनी कंट्री को यूनाइट मतलब एक सूत्र में बांधने का कोशिश किया, भाई सब एक, एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एसोसिएशंस, और उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशंस को बनाना शुरू कर दिया। राइट, द लीडर्स टॉक टू द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब लीडर्स तो जो थे लोगों को अवेयर करने कि जो ये ब्रिटिश रूल है, मतलब पहले तो लोग क्या करते थे, जो आर्मी कर रही है, जो ब्रिटिश कंपनी कर रही है दैट इज राइट, या जो ब्रिटिश रूल है, वो अपने आप को ऐसे ही रियलाइज कर चुके थे, ऐसे ही मान चुके थे कि हमें ऐसे ही रहना है। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, दे टॉक टू द पीपल, उन्होंने बताना शुरू किया कि व्हाट द ब्रिटिशर्स वर डूइंग। ओके, इंडियंस डिसाइड डिड टू पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, वी विल एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, सो बहुत से मूवमेंट्स चलाए, स्ट्रगल किया। ये चैप्टर नेम इज द क्या है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। यहां से उनका फ्रीडम स्टार्ट होता है। ओके, इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ सपोर्टेड क्या हुआ, रिवोल्ट स्प्रेड नहीं हो पाया था, लिमिटेड था कहाँ पर, नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल पार्ट तक। अब की बार क्या हुआ कि बेटा जो ये हमारे बाद में जो हमारे रिवोल्ट हुए हैं या स्ट्रगल हुआ है, इसमें पूरी कंट्री का सपोर्ट मिला है। ओके, द इंडियंस फेल्ट दैट देयर शुड बी वन स्ट्रॉन्ग ग्रुप। यहाँ पर एक क्या उनको महसूस हुआ कि हमारा क्या होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रुप होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, विच कैन फाइट फॉर द राइट ऑफ द पीपल, जो हमारे अधिकारों के लिए, हमारी राइट्स के लिए क्या कर सके बेटा, फाइट कर सके। This resulted in the formation of the Indian National Congress in 1885. इसी के लिए बेटा हमारी एक नेशनल कांग्रेस बनी, एंड द नेम वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। A.O. Hume, a retired British officer, founded the Indian National Congress. किसने एस्टेब्लिश फाउंड किया, कहते हैं ना कि फाउंडर होता है किसी भी उस चीज का, तो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, A.O. Hume, a retired British officer. A.O. Hume wanted to develop meaningful relationship between the Indian people and the British government. A.O. Hume वे बेशक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते थे कि एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप होनी चाहिए किसके बीच में, जो हमारे इंडियन पीपल थे एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। The first session of the Indian National Congress was held in Bombay. Now it is called Mumbai. You all know na. So old name of Mumbai is Bombay. Under the presidentship of W.C. Banerjee. This session of Congress was attended by 72 delegates from all over India. अब आप ये देखिए कि 72 delegates आए हैं from all over the India. All over the India वहां पर assemble हुए सब,
इट मीन्स क्या हो रहा है कि जो अब स्ट्रगल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कंट्री एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू देयर delegates, or you can say their representatives, right? So the Indian National Congress held meeting annually in different cities of India. Annual meetings hone lagi. The leaders discussed the problem faced by the people and anti-people policies of the British rulers. With the passage of time, the Indian National Congress became a strong organization. So, with the passage of time, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, जिसका मेन रोल रहा था हमारे फ्रीडम में. कहते हैं ना कि भाई कोई भी काम अगर हमने स्टार्ट करना है, एटलीस्ट हमें एक ग्रुप तो चाहिए. सो दैट ग्रुप वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. The main leaders